online inaugural ceremony of this 1 month online certificate program on good clinical practice for Ayurvedic medicine. The Honorable Padam Shri Vaidya Rajesh Kotecha Sir, Secretary of the Ministry of Ayush, Government of India. Padam Shri Awardee Honorable Vaidya Rajesh Kotecha Sir stands as a towering figure in the field of Ayurveda, bringing with him a wealth of experience and expertise. His distinguished career includes serving as the Vice Chancellor of the prestigious Gujarat Ayurveda University in Jamnagar during 2013 to 16. Following his remarkable contribution, he was appointed as the Secretary of the Ministry of Ayush in July 2017, showcasing his unwavering dedication to the advancement of traditional Indian system of medicine. Sir's academic journey is marked by notable achievements, including obtaining his doctorate in Ayurveda medicine from Gujarat Ayurveda University in 1991, which his scholarly pursuits have been recognized with numerous accolades such as the Global Ayurveda Physician Award 2007 from the Chief Minister of Delhi, Mrs. Sheila Dikshit. India on 2nd March 2008 conferred by Hakim Ajmal Khan Society, New Delhi, and Ayurveda Ratna Award 2008 from International Academy of Ayurveda Physicians for the year 2008, and the prestigious Padam Shri Award, Padam Shri conferred by the President of India in 2015. This is the fourth highest honor by the Government of India given to a recognition of the contribution in the area of Ayurvedic medicine. Apart from his remarkable academic achievements, Sir is an accomplished author, having penned insightful works like Concept of Atharva Vinivesha in Ayurveda and the Beginner Guide to Ayurveda, which offer invaluable insight into Ayurvedic principles and practice for holistic well-being. His vast repertoire of experiences spans across various domains, including academia, research, administration, and corporate sectors also. From serving as the head of Department of Kaya and PG Institute Ayurveda to his tenure as Director of Research at JRD Tata Foundation for Research in Ayurveda and Yoga Sciences, Dr. Kotecha Sir has consistently demonstrated exemplary leadership and vision. Furthermore, Sir's commitment to promoting Ayurveda extends globally, as evidenced by his involvement in international conferences and collaborations as the trustee of the World Ayurveda Foundation and the patron of AYU, a renowned peer-reviewed journal. He continued to spread initiatives aimed at fostering the growth and recognition of Ayurveda on a global scale. With his multifaceted expertise and unwavering dedication, Vaidya Rajesh Kotecha Sir embodies the spirit of innovation and excellence in the field of Ayurveda. We are deeply honored today to have him grace our inaugural ceremony and eagerly anticipate his enlightening insights. Please join me in extending a warm welcome to the Honorable Padam Shri Vaidya Rajesh Kotecha Sir to grace this ceremony and bless us as we embark on this enriching journey of learning and discovery. Please, sir, welcome, sir. थैंक यू आदरणीय गणमान्य व्यक्ति, सम्मानित विशेषज्ञ, सभी संकाय सदस्यगण, प्रोफेसर तोमर जी, प्रोफेसर तनुजा जी, आप सबको मेरा प्रणाम। सभी प्रतिभागियों को मेरा प्रणाम। मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व हो रहा है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जीसीपी पर 1 महीने के ऑनलाइन प्रमाण पत्र कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में आप सभी से वार्तालाप करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्यक्रम इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और सीसीआरएस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। आयुर्वेद अनुसंधान के क्षेत्र में गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रैक्टिस के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम एक गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के हमारे पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स हो, तो आयुर्वेद का जो सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है, लोगों में डिमांड बढ़ी है, उसकी हम ठीक प्रकार से क्वालिटेटिव आपूर्ति कर सके। और हमारे पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान की वैज्ञानिकता, वैश्विक विश्वसनीयता और प्रमाण आधारित मान्यता को ये सुनिश्चित करता है। मैं आयोजकों को जीसीपी जैसे अत्यंत आवश्यक विषय को कार्यक्रम के रूप में आयोजित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद और सराहना व्यक्त करता हूँ। हमें पता है कि आयुष मंत्रालय समग्र और एकीकृत स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य चल रहा है। जैसा कि विदित है, पिछले 1 दशक में नीति समर्थन, अनुसंधान, प्रगति और वैश्विक स्वीकृति के माध्यम से आयुष प्रणालियों के प्रचार प्रसार में निरंतर विकास हुआ है। कोविड-19 के बाद आयुष को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है और जो चिकित्सकीय प्रमाणों, साक्ष्य आधारित शोध, एविडेंस बेस्ड रिसर्च और तेजी से बढ़ते उद्योग के समर्थन से प्रेरित है।
हमें ये भी सबको जानकारी है कि पिछले 10 वर्षों में जो 2014 से 24 तक का जो कार्य थे, 24 तक का कार्यकाल है, उसमें 10 वर्षों में या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना के 10 वर्षों में पूरे सेक्टर का 8 गुना वृद्धि हुई है। और अभी एक एनएसएसओ सर्वे हुआ, उसमें ये भी पता चला कि 95% से 96% भारतीय आयुष विधाओं के बारे में अवेयर है, उनको जानकारी है। उसमें से 50% से ज्यादा आयुष विधाओं का प्रयोग अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। योग को भी 2.5 करोड़ हाउस होल्ड में एक कम से कम एक व्यक्ति रोज योग करता है। ये सब परिणाम हमें मिले हैं। ये साक्ष्य आधारित शोध और तेजी से बढ़ते आयुष के प्रदर्शन के ऊपर आधारित है। और इसमें जीसीपी ये ट्रेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए मैं पुनः एक बार इसका उल्लेख करना चाहूंगा। और वास्तव में जब हम इसको आयुष की पोटेंशियल को देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारे पास नंबर्स तो बहुत है, लेकिन इतने सारे नंबर्स को हम यदि अपस्किलिंग करते हैं, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जैसे पाठ्यक्रम के माध्यम से हमारे चिकित्सकों का अपस्किलिंग करते हैं, उनको अपग्रेड करते हैं, तो लोगों की हम और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। आयुष प्रणालियों का मुख्य धारा के स्वास्थ्य देखभाल में एकीकरण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ साथ नेशनल आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन मिलकर के कोलोकेशन, आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्रों की स्थापना, आयुष अनुसंधान पोर्टल जिसमें 43,000 से अधिक शोध पत्र संग्रहित है, आयुष हस्तलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट की सुरक्षा, प्रभावशीलता, उनके कार्य प्रणालियों पर साक्ष्य प्रदान करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन बन चुका है। हमें ये कहा जाता है कि आयुष विधाओं में आपके पास एविडेंस नहीं है, लेकिन अपना आयुष रिसर्च पोर्टल को एक बार आप सभी को मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप जाके देखिए, वहां ऐसे 43,000 पब्लिकेशंस को साइट किया गया है। इसलिए ये पोर्टल जो है ये अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, उसको वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक आधार को मजबूत सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमने अभी ये भी जानकारी है कि 2013 में भारत सरकार ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के लिए गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के प्रकाशन किया है। और हाल में आईसीएमआर अभी पिछले महीने आईसीएमआर ने अपने जो रिसर्च एथिक्स की गाइडलाइन, एथिकल गाइडलाइन, उसको आयुष के समावेश करने के लिए उसको मॉडिफिकेशन अभी प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के जो क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी जो एथिक्स कमेटी है उसमें आयुष का रिप्रेजेंटेशन भी सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि आयुष का ठीक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन हो और एक इंक्लूसिव रिसर्च के क्षेत्र में हम लोग मिलकर आगे बढ़े। आज के कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों से मेरी यह निवेदन है, अपेक्षा है कि आप आयुष आधारित अनुसंधान को आगे बढ़ाएं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और साथ ही अपने अनुसंधान कौशल को और सशक्त बनाएंगे, जैसे कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को की वैज्ञानिक पुष्टि में हम महत्वपूर्ण योगदान दें। इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स अय्या और सीसीआरएस के मार्गदर्शन में किया जा रहा यह कार्यक्रम अनुसंधान उत्कृष्टता, नीति प्रगति और आयुर्वेद की प्रमाण आधारित स्वीकृति को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करेगा। मैं विशेष रूप से प्रोफेसर तोमर जी का उल्लेख करना चाहूंगा कि ये एक प्रकार से इस प्रकार की एक्टिविटी के एपिसेंटर है और उनको मैं एक बार मेरी तरफ से व्यक्तिगत बधाई देना चाहूंगा। अंत में पुनः एक बार फिर मैं आयोजकों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सार्थक चर्चा, प्रभावशाली सहयोग और सकारात्मक परिणामों की कामना करता हूं। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार।